Hello dear students, today Maths 2, chapter number 2, Sequences and Series, exercise 2.1. You will have to study in this chapter geometric progression, or you can say geometric series. What are the geometric series? You can say 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 and so on, or 1, 2, 4, 8 and so on, or 3, 6, 12, 24 and so on. So they are the geometric series. For the geometric series, we can say AR square, AR cube, AR raised to 4 and so on up to AR raised to n minus 1. So in this section or in this chapter, you have to study all about geometric progression. Before this, you have studied already in the previous standards arithmetic progression, that is AP. So for AP, you have studied nth term means last term of an AP, sum of n terms of an AP, and other formulae. So in this chapter, you have to study also nth term, nth term of an AP denoted by Tn, and its formula is A into R raised to n minus 1, where A stands first term of the given series and R stands common ratio, which is equal to T2 upon T1. तो T2 upon T1 क्या है, यहाँ पर इसको क्वेश्चंस में इजीली समझ सकते हो, और यू कैन से हियर second term upon first term of the given sequence equal to T3 upon T2 equal to T4 upon T3 and so on. It is known as common ratio. और arithmetic progression में इसी को यहाँ पर बोलते थे common difference. इसके equivalent जो term था उसमें क्या था, common difference, and that was T2 minus T1. वहाँ पर subtract करते थे, यहाँ पर क्या करना है, divide. And n stands number of terms in the given sequence. In general, you can say common ratio R equal to Tn plus 1 upon Tn. Means next term upon previous term, or you can say the ratio of two consecutive term is called common ratio of a GP. तो एक बार फिर से देखते हैं, nth term or Tn or last term of a GP equal to A into R raised to n minus 1. A for first term or for common ratio, and common ratio you can find easily by dividing second term upon first term, or third upon second, or fourth upon third, and so on. And n is the number of terms. Generally you can say R equal to Tn plus 1 upon Tn. In case if you have to take 3 numbers, 4 numbers and 5 numbers in GP, so you should take these numbers only. Second one, 3 numbers in GP, A upon R, A and AR. 4 numbers in GP, A upon R cube, A upon R, AR and AR cube. And 5 numbers in GP, A upon R square, A upon R, AR, AR square. ये 5 numbers है. But why these numbers? ये भी question पूछ सकते हो कि why only these numbers? Because if we divide, अब इनका जो common ratio है सेम होना चाहिए. देखो A upon R, तो A going by A and R goes to numerator, so we get common ratio R. यहाँ पर देखो AR upon A going by A डिवाइड हो जाएगा तो R मिलेगा. तो इसमें जो एक फिक्स्ड टर्म आ रहा है कॉमन रेशियो, दैट वन इज ऑलवेज R. ऐसे ही 4 नंबर्स में भी देख सकते हो कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर 4 नंबर्स के लिए A upon R क्यूब, सेकंड A upon R, थर्ड A इंटू आर एंड फोर्थ A इंटू आर क्यूब. तो इनको बाहर रखना बहुत ही आसान है. देखो जो नंबर यहाँ पर डिवाइड की गई A upon R, यहाँ पर मल्टीप्लाई A upon R क्यूब, A upon R, A upon R square, या A into R square here, A upon R, A into R, and middle number is A. तो ये दो मिडल नंबर यहाँ पर है, थर्ड एंड फिफ्थ टर्म. तो इस तरह से ये नंबर्स को इजीली फाइंड कर सकते हो, और इनका कॉमन रेशियो हमेशा सेम आता है. यहाँ पर भी डिवाइड कर सकते हो. A अपॉन
फर्स्ट यहाँ पर ए अपॉन आर क्यूब बिकम्स आर स्क्वायर, फिर यहाँ पर ए अपॉन आर करोगे फिर से आर स्क्वायर आएगा, ए आर क्यूब अपॉन ए गोइंग बाई ए, आर क्यूब अपॉन आर बिकम्स आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सभी नंबर में इनका जो देखो इस नंबर के लिए कॉमन रेशियो क्या है आर, यहाँ पर आता है आर स्क्वायर, लेकिन वो फिक्स्ड है, सभी के लिए आर स्क्वायर आता है, दैट वन इज नोन एज कॉमन रेशियो ऑफ अ जीपी। और यहाँ पर ए अपॉन आर स्क्वायर, तो इसमें फिर से कॉमन रेशियो जो आएगा वो आर हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अगर हमें 3 नंबर्स लेना है तो ये लेना है 4 नंबर्स एंड 5 नंबर्स, ये सभी बाहर रखना है किसी भी स्टूडेंट को, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में बेस्ड होंगे और इस एक्सरसाइज के लिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस अपने को सॉल्व करना है। और ये सभी फार्मूले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए सीईटी एंड जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें और भी फार्मूले हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी एंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी, समेशन दैट इज सिग्मा नोटेशन एंड रिलेटेड फार्मूला, एंड अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, मतलब एपी और जीपी दोनों मिक्स करके आएंगे, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज and summation, or you can say sigma notations related formula and sigma notation related questions। तो आइए हम लोग पहले इनका बेसिक टर्म देखते हैं और एक्सरसाइज की स्टार्टिंग करते हैं कि एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया गया है और उसको हमें सॉल्व कैसे करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन द फर्स्ट क्वेश्चन चेक वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर जीपी, इफ सो राइट टीएन। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ सब क्वेश्चंस हैं, फ्यू सब क्वेश्चंस आर गिवन। तो उन सभी क्वेश्चंस को हमें पहले चेक करना है कि ये जीपी है या नहीं है। अगर ये जीपी है तो उसका nth टर्म मींस टीएन हमें फाइंड करना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला टीएन इक्वल टू a इंटू आर रेस टू एन माइनस वन, जो कि मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया है जिससे फटाफट बार्ट हो जाए, टीएन इक्वल टू a इंटू आर रेस टू एन माइनस वन। तो आइए पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज 2, 6, 18, 54 एंड सो ऑन। फर्स्ट वी चेक हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, t1 मींस फर्स्ट टर्म, t1 इक्वल टू 2, t2 मींस सेकंड टर्म दैट इज t2 इक्वल टू 6, t3 थर्ड टर्म दैट इज t3 इक्वल टू 18 एंड t4 फोर्थ टर्म t4 इक्वल टू 54 एंड सो ऑन। तो इस तरह से अब हम लोगों को पहले चेक करना है। तो चेक करने के लिए मैंने जैसा कि बताया कि T2 अपॉन T1 ये सबसे पहले चेक करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2 अपॉन T1? देखो T2 की वैल्यू क्या है 6 और T1 की वैल्यू क्या है 2, तो 6 अपॉन 2 दैट इज 3। फिर T3 अपॉन T2, T3 18 एंड T2 6, 18 अपॉन 6 दैट इज 3 एंड T4 अपॉन T3 दैट इज 54 अपॉन 18 इट इज इक्वल टू 3। तो वी सी दैट these ratios are fixed। देखो T2 अपॉन T1 3, T3 अपॉन T2 3, T4 अपॉन T3 3, ये सभी 3 हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर हम लोग ऐसे कंटिन्यू फाइंड करेंगे तो भी ये 3 3 3 3 ही मिलेगा। तो हम बस बोल सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं, और यू कैन से hence the ratio of any two consecutive term is constant। what does it mean? कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर क्या है 3 3 3 3 3। ये अदर क्वेश्चन में चेंज भी हो सकता है, दूसरा नंबर भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि ओनली 3 ही रहेगा, इट मे बी एनी कांस्टेंट टर्म। तो हेंस द रेशियो ऑफ एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी। अब ये बोल सकते हो अगर ये वैल्यू फिक्स आती है, एक कांस्टेंट टर्म है, सभी में इक्वल आता है, तो बोल सकते हो कि गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी। देयरफॉर कॉमन रेशियो आर, तो आर की वैल्यू भी यही होती है जैसा कि भी फार्मूला लिखे हो, जनरल टर्म का फार्मूला या जो मैंने एग्जांपल दिया है वहां भी देख सकते हो कि आर इक्वल टू 3, यही होता है कॉमन रेशियो, आर इक्वल टू 3। और फर्स्ट टर्म, अब हमें यहाँ टी एन निकालना है, इसके लिए हमें सब लिखना होगा। फर्स्ट टर्म मीन्स ए इक्वल टू T1 दैट इज 2, यूजिंग द फार्मूला Tn, since Tn equal to a into r raised to n minus 1, therefore Tn equal to 2 into 3 raised to n minus 1। देखो वैल्यू ऑफ a 2, r की वैल्यू क्या है 3 और रेज टू n minus 1, n इज नॉट गिवन,
हमें टी एन फाइंड करना है, मीन्स एन को एन ही रखना है, नो वैल्यू ऑफ एन। तो टी एन इक्वल टू 2 इंटू 3 raised to n-1, दिस इज टी एन, आर nth टर्म, लास्ट टर्म, ये इसका टर्म हुआ। व्हेन वी नो वैल्यू ऑफ n देन यू कैन सिंप्लीफाई दिस टर्म। जब भी n की वैल्यू यहाँ पर दी रहेगी, जो भी हो 5 6 7 8 9 10 100 200, तो इसकी वैल्यू हम एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज यू हैव टू राइट एज इट इज इन आंसर। तो एक बार फिर से देख लो, जैसे हम लोग, मैं कंपेयर करता हूं पहले, जब हम लोग एपी करते थे तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोग सब्ट्रैक्शन यूज करते थे, T2 माइनस T1 D इक्वल टू T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पर देखो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 3 54। तो यहाँ से भी पता कर सकते हो कि किस मल्टीपल में सीक्वेंस इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 सब में करते जाओगे और नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा। इसका मतलब क्या है, कॉमन रेशियो 3 है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बहुत से ट्रिक्स हैं जो कि फ्यू सेकंड्स में आंसर निकाल सकते हो, लेकिन अभी यहाँ पर डिटेल्स में समझना है, लिखना है। तो आइए अभी सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। हियर गिवन सीक्वेंस 1, -5, -25, -125 एंड सो ऑन। तो here T1 equal to 1, T2 equal to -5, T3 25 and T4 equal to -125. Now divide them. T2 upon T1 equal to -5 upon 1, that is -5, and T3 upon T2 equals 25 upon -5, it is equal to -5. T4 upon T3 -125 upon 25, that is -5 and so on. तो इस तरह से अगर हम लोग कंटिन्यू करते जाएं, कंटिन्यू फाइंड करते जाओगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, -5 विच इज अ कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पर कांस्टेंट कैसा है, नेगेटिव है और उसकी वैल्यू क्या है 5। तो -5 क्या लिखोगे, r इक्वल टू -5, मीन्स कॉमन रेशियो r इक्वल टू -5। तो इसलिए बताया माइनस भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, फ्रैक्शन, डेसिमल और रेशनल भी हो सकता है या इरेशनल भी हो सकता है। तो कोई भी नंबर यहाँ पर देख सकते हो। तो हेंस द रेशियो ऑफ एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, सो इट इज इन जीपी। ये तो कंफर्म हो गया कि जीपी में है, और क्वेश्चन में बोला गया कि अगर ये टर्म जीपी में है तो हमें इसका nth टर्म फाइंड करना है। तो आइए अब इसका nth टर्म फाइंड करते हैं और देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले a, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 1, जो कि अपने सीक्वेंस से लिया गया। फर्स्ट टर्म r इक्वल टू -5, सिंस tn इक्वल टू a इंटू r रेज टू n-1, इट इज इक्वल टू 1 इंटू -5 होल रेज टू n-1। तो इसको एज इट इज यहाँ पर रख देना है और इसका कोई सोल्यूशन आगे फाइंड करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर 1 इंटू -5 रेज टू n-1, दैट इज -5 रेज टू n-1। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ सी इट्स थर्ड क्वेश्चन। रूट ऑफ 5, 1 upon root 5, 1 upon 5 root 5, 1 upon 25 root 5 and so on. Here T1 equal to root 5, T2 1 upon root 5, T3 1 upon 5 root 5 and T4 1 upon 25 root 5 and so on। इस तरह से हम T5 T6 T7 कंटिन्यू यहाँ पर लिख सकते हो। तो T2 upon T1, since T2 upon T1 becomes what, 1 upon root 5 upon root 5, that is 1 upon root 5 into root 5, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो becomes 1 upon 5, क्योंकि root 5 into root 5 क्या होता है 5। T3 upon T2 1 upon 5 root 5 upon 1 upon root 5। तो यहाँ पर इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ, तो इसकी वैल्यू जो यहाँ पर आती है वो क्या आती है, उसको देख लो यहाँ पर कि 1 अपॉन 5 रूट 5 और यहाँ पर है 1 अपॉन रूट 5। तो इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो रूट 5 विल बी कैंसल्ड, वी गेट 1 अपॉन 5। T4 अपॉन T3 1 अपॉन 25 रूट 5 अपॉन 1 अपॉन 5 रूट 5। तो ये जब यहाँ पर हम लोग इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ रूट 5 कैंसल्ड, फिर 5 5 या 25, इट बिकम्स 1 अपॉन 5 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म आ रहा है, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5 इन ईच, ये तीनों में ही 1 अपॉन 5 है। तो 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5 एंड सो ऑन। इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा कांस्टेंट टर्म ऑलवेज 1 अपॉन 5 है, और इसकी वैल्यू जो यहाँ पर आ रही है r, मीन्स कॉमन रेशियो r की वैल्यू भी यही है 1 अपॉन 5। तो इस तरह से ये भी जीपी है, तो लिखना पड़ेगा द रेशियो ऑफ एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट विथ
कॉमन रेशियो, ये क्या है आर की वैल्यू, कॉमन रेशियो आर इक्वल टू 1/5। तो अगर एक जीपी है तो हमें क्या करना है, अब इसका nth टर्म भी फाइंड करना ही पड़ेगा। तो आइए nth टर्म को भी फाइंड कर ही लेते हैं। सिंस Tn इक्वल टू a इंटू आर रेज टू n माइनस 1, substituting the value of a which is equal to root of 5 and value of r 1/5 raised to n minus 1. So root 5 multiplied by 1/5 whole raised to n minus 1. तो ये रहा हमारा Tn, या इसी को हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। तो लास्ट टर्म Tn। अब हमें n की वैल्यू जब पता रहेगी तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या इसका अगर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना ही पड़े तो देखो, अगर इसका हमें सीटी के लिए क्वेश्चन आता है तो इनके ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे। ये रूट 5 का मीनिंग क्या होता है, 5 रेज टू 1/2, 5 रेज टू हाफ, और 1/5 का मीनिंग है 5 रेज टू माइनस 1। तो अगर ये 5 रेज टू माइनस 1 होल रेज टू n माइनस 1 होगा तो ये हो जाएगा -n प्लस 1। तो -n प्लस 1 और यहाँ पर है हाफ, तो ये -n प्लस 1 प्लस हाफ, ये तीनों टर्म जो है ऐड हो जाएंगे और यहाँ पर आएगा 5 रेज टू -n प्लस 1 प्लस हाफ, मीन्स 5 रेज टू -n प्लस 3/2, और यू कैन से 5 रेज टू 3/2 -n। ये इसका फाइनल आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर अभी 11th स्टैंडर्ड में इस अपने कॉलेज लेवल पर यहाँ तक भी आंसर को छोड़ सकते हो। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। या अगर इन, क्योंकि देखो तीनों का ये जहाँ पर जो टर्म है, ये दोनों ही टर्म क्या है, 5 है, तो इनका जो बेस है तो 5 हो गया, और जो इनके इंडेक्स हैं फिर उनको हमें मल्टीप्लिकेशन है तो इनको ऐड कर सकते हो। इस तरह से मिलेगा 5 रेज टू 3/2 -n। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आंसर ऑप्शन में ऐसा दिखेगा, या दूसरे भी फॉर्म में दे सकते हैं क्योंकि उसके और अनदर फॉर्म में भी स्प्लिट किया जा सकता है। तो आइए अब आगे देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन, फोर्थ वन यहाँ पर है 3 4 5 6। देखो 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये कितने से इंक्रीज हो रहा है, इट इज इंक्रीज्ड बाय 1। नेक्स्ट टर्म इज +1 +1 +1 करते जाओ, और नेक्स्ट टर्म यहाँ पर हमें मिलता है, देखो 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 यहाँ पर आता जाएगा 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो ये तो है एपी, लेकिन हमें यहाँ पर चेक क्या करना है, जीपी के लिए। तो इसलिए हम लोग पहले यहाँ पर चेक करेंगे कि इसका कांस्टेंट टर्म क्या डिवाइड करके कांस्टेंट टर्म फिक्स आता है। देखो T1 3, T2 4, T3 5, T4 6। तो T2 अपॉन T1 4/3 एंड T3 अपॉन T2 5/4। जब ये दो टर्म ही नहीं इक्वल हैं, देखो 4/3 इज नॉट इक्वल टू 5/4। Therefore, you can say T2 upon T1 is not equal to T3 upon T2. So, it is not in GP. क्योंकि जब इसका फर्स्ट टू ही रेशियो डिफरेंट हो गया तो आगे चेक करके कोई मतलब नहीं, अगर एक भी डिफरेंट हो गया तो इट इज नॉट इन जीपी। और अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करके देखें, 4 - 3 1, 5 - 4 1, 6 - 5 1, तो ये 1 1 1 1, लेकिन ये सब्ट्रैक्ट करके आता है तो एक्चुअल इट इज इन एपी। ये एपी में है, नॉट इन जीपी। तो इसके हमें जीपी में चेक करना था तो यहां लिखना है, सो इट इज नॉट इन जीपी। नाउ फिफ्थ वन 7 14 21 28 एंड सो ऑन। अब देखते हैं कि यहां पर हमारा इसका रेशियो क्या आता है। हियर T1 is 7, T2 14, T3 21 and T4 28 and so on. Since T2 upon T1 equals 14 upon 7, that is 2. But T3 upon T2 is 21 upon 14 which is equal to 3/2। ये सिंप्लीफाई करके क्या आ गया, 3/2। Therefore T2 upon T1 is not equal to T3 upon T2, क्योंकि देखो 2 is not equal to 3/2, they are not equal। So T2 upon T1 is not equal to T3 upon T2, therefore it is not in GP। तो ये भी जीपी में नहीं है। और यहाँ पर अगर हम लोग ये इसको देखें कि 14 - 7 अगर माइनस करके आता है, 21 - 14 ये भी 7 है, यहाँ 28 - 21 ये भी 7 है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 7 7 7। 14 - 7 7, दिस माइनस दिस 7, दिस माइनस दिस 7, तो 7 7 7 का डिफरेंस आता है। तो डिफरेंस अगर से इक्वल है, कांस्टेंट है इनका, तो वो क्या होता है, एपी। सो इट इज इन एन एपी बट नॉट इन जीपी। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा इसके लिए,
इट इज नॉट इन जीपी। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 4th एंड क्वेश्चन नंबर 5th ये दोनों ही जीपी में नहीं है, तो इनका हम टीएन फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये जीपी में नहीं है तो इसमें हमारा टीएन के लिए जीपी का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो स्टॉप द प्रोसेस टिल दिस स्टेप ओनली। सो इट इज नॉट इन जीपी, हियर इट इज नॉट इन जीपी। ऐसा लिख करके यहाँ पर स्टॉप कर सकते हो, क्योंकि जीपी में नहीं है तो हमें आगे का प्रोसेस, आगे का टर्म फाइंड नहीं करना है। ओके, तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ तक ही इसको क्लोज करते हैं। फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज एंड सेम चैप्टर देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोज। थैंक यू सो मच।